Okay, so recording started. So today we will cover le pronom relative, adjective possessive et conversation au restaurant. So this is adjective possessive that we have done already. We'll just practice a little bit. Okay. After that, we will come to the new topic, that's pronom. Okay. And so do you want to practice first a basic conversation in French at restaurant? जी Okay, so see here, server या client, what would you like to become? मैंने स्क्रीन नहीं दिख रही. अच्छा, sorry. So ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ conversation au restaurant, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਇਹ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖੋਨੋ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਾਂ ਕ. क्या? खौनो रिलेटिव. ये करेंगे हम आज. एक करेंगे एडजेक्टिव पोजेसिव, जो हमने लास्ट वीक करा थोड़ा बहुत, उसकी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत रहती है हमारी. और एक हम करेंगे रेस्टोरेंट में कैसे हम ऑर्डर करते हैं फूड, कैसे बात करते हैं, हमें क्या सुनने को मिल सकता है रेस्टोरेंट में. हाँ जी. सो ये तीनों है. सो कैसे स्टार्ट करें? वही रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वाले करते हैं पहले. ओके, परफेक्ट. Bonjour, bienvenue au restaurant. Vous avez une réservation ou vous souhaitez choisir une table? Bonjour. Non, non, pas de réservation. Nous, nous aimerions une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Très bien. Venez par ici, je vais vous installer. Voici le menu. Prenez votre temps. Merci. Quels sont vos plats du jour? Aujourd'hui, nous avons une soupe de légumes maison et du poisson grillé avec des légumes. Ça semble bon. Je vais prendre le poisson grillé, s'il vous plaît. Excellent choix. Souhaitez-vous une boisson avec votre repas? Oui. Envoyez du plat. Très bien. Très bien. Et pour le dessert, nous avons une mousse au chocolat et une tarte aux pommes. Je vais prendre la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Parfait. Je vais passer votre commande. Cela arrivera dans quelques minutes. Oh, merci beaucoup. Avec plaisir et bon appétit. बेसन होता स्टेक नहीं बेसन कितने? बेसन. Okay. Let's start from the beginning. Bienvenue au restaurant. Non. कितने है? Besoin? Oh, un besoin avec votre repas. ये तो ना need, but है कितने में देख नहीं रहा. Excellent choice. Okay. Vous
ਤੇਵੀ ਆ ਕੇ ਔਨ ਬੋਸੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾ drink. ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਸੋਂ ਸੋ ਬੋਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਬੋਸੋਂ drink. Yeah. So, bonjour, bienvenue au restaurant. Vous avez une réservation où vous souhaitez choisir une table. ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋ do you have a reservation or do you want to choose a table? So ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ already table reserved ਹੁੰਦਾ so they could have said that we have already booked table number 5 or something, but ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋ server ਵੀ you already have the reservation or you want to choose a table, we have some available. उसके पास reservation नहीं है, नहीं हाँ ਉਹਦੇ नहीं हैगी बिल्कुल exactly. Bonjour, pas de réservation. Okay, ये किस इसको कैसे नू एम मेरे तो नहीं पढ़ाया गया है मतलब वो कहते bonjour नो सिद्धा ही कहता ਉਹਨੇ मतलब ਆਪਾਂ sentence पूरा के नहीं उसके बाद नू एमिरो nous aimerions une table pour 2 personnes s'il vous plaît. So ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ मतलब verb aimer है aimer. I would like to have table for 2. Yeah, right? I would love to have. So j'aimerais, so nous aimerions. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ j'aimerais ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ j'aimerais, I would love to have. j'aimerais politely je voudrais ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ je voudrais so request ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ nous aimerions j'aimerais je voudrais une table pour 2 personnes s'il vous plaît. So you can use any of them, right? Any. Oh. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ reservation, okay? So ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ une table, ਠੀਕ ਹੈ? So that was it. ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ I think you know the meaning of this all line, right? Phrase up till here. Okay, très bien, venez par ici. So ਇੱਥੇ imperative use ਹੋਇਆ venez par ici. So please come from here. venez means come. ਜਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦਾ ਨਾ ਵਨੀਰ ਦਾ ਵਨੀਰ ਹਾਂਜੀ ਵਨੀਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੁਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਵਨੇ ਪਾਰੀਸੀ ਵਨੇ means come, so parisi means by here. je vais vous installer, I'll set you up. voici le menu. Okay, le menu ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮੈਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਮੈਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ. prenez votre temps, take your time. ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਪੁੱਛਦਾ merci, quels sont vos plats du jour? ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ quels sont vos plats du jour? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, वो plat du jour ਹੁੰਦਾ today's dish, today's specialty. Yeah, today's special. Yeah. So aujourd'hui nous avons une soupe de légumes maison. Nous avons une soupe de légumes maison. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੂਪ ਲੈਗਿਊਮ ਸੂਪ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਪੋਸੋਂ ਗਰੀਏ ਪੋਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਸ਼ avec des légumes, grilled fish and vegetables. So ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੂਪ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈਡ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਲਡ ਫਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਲਡ सब्जियों के नाल. सो आज ये कह रहे हैं हाँ आज बता रहे हैं ये मतलब आज के लिए क्या, तो आज के लिए ये है हमारा आज के लिए सूप है वेजिटेबल्स का सब्जियों का और एक है मछली ग्रिल्ड, उसके साथ मिलेंगे आपको सब्जियां. ओके सेला यहाँ पे बोला सला, तो यहाँ पे आएगा सेला.
Cela semble bon. Cela, it's this sounds good, right? It's this in English. So we have done that adjective demonstrative. So it's this. Cela or sab is same here. So same thing, right? It's this. Semble is the verb semble. Semble means to resemble or to see. Seems. Okay. So it's conjugated with the third thousand person to singular. So cela is like il, where we look at the conjugation. So like if we happen to conjugate any verb with il or l, so that's how it's being conjugated. Cela semble bon. It seems good. Je vais prendre la poisson grillée, s'il vous plaît. So he's going with the plate that's available for the day. Okay. Excellent choix. Great choice. Souhaitez-vous une boisson avec votre repas? So then server is asking, would you like to have a drink with your food? Oui. Un verre d'eau plate. Un verre d'eau means one glass of water. Plate means simple. Okay, nothing into it. Très bien. Et pour le dessert, nous avons une mousse au chocolat et une tarte aux pommes. I'm going to show you what it seems like. Mousse au chocolat. It's a chocolate drink. Mousse chocolate is like a hot chocolate. Hot chocolate, yeah, absolutely, absolutely. So yeah, it's like a hot chocolate. Got it. So that's how it looks like. Yeah. And then comes tarte aux pommes. So what's tarte aux pommes? Well, that's a very traditional recipe of Quebecers. So if you happen to have some time and you want to cook sometime, you can look for huh? Apple tart or apple pie? Apple pie, exactly. Apple pie. So if you happen to have some time, so you can look for recipes of Ricardo. So Ricardo is a Quebecer chef, and he's much famous. He cooks great recipes. With any recipe you want to look into, so you can write the name of Ricardo, and you will see how he. So how to make these all things. So Ricardo, so tarto I like pommes. peach pie. Huh? I like what's called? There is another one. Pumpkin pie. That's good. Okay, got it. So this is, I have the link in the PDF. You will get it. So if you want to see, if you have any chance, so this like a better chef, he cooks great food and he posts the videos. And if you want to have a look at how to make tato palm or something like that, so yeah, it's easy to make. And generally, in the month of September, we do Kuyat, Auto Kuyat de Pomme. So what that means is that we go to nearby orchard and we can pick the apples from there, from the trees, and one bag is around $20. So you can get the bag full, bring it to home, and then you can make this kind of stuff to save yourself whenever you're hungry. So that's what people do it like. ठीक है जी. So उनके पास ये था और उन्होंने कहा कि j'avais prendre une mousse au chocolat s'il vous plaît. सही है. Parfait. Je vais passer votre commande. Passer होता I will pass your order, and Sela again Sela.
सेला अगेन आ गया, सेला का मतलब दिस होता है। अरीवरा, इट्स फ्यूचर टेंस। ओके, वर्ब arrive, so it arrives in some time, dans quelques minutes. Quelques होता है some, right? Merci beaucoup, avec plaisir, bon appétit. quelque chose हो गया something, right? Exactly. Quelques होता है some, quelques, quelques होता है some. So you have some minutes, so quelques minutes. So ये था। तो एक बार हम फिर करते हैं। So you be server, I be client, and let's see. तो इसके लिए ध्यान रखना है, इसे रिजर्वासियों उनताब्ल सेला, यहाँ पे आ वैर दो प्लाप, बाकी रेस्ट वाज गुड। Ça arrive, ça arrive dans quelques minutes ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? मिनूट सेला अरीवरा। ओके, चाहे ਤੁਸੀਂ अरीव भी कह सकते, नो प्रॉब्लम। सो इफ यू वांट टू जस्ट यूज द वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, दैट्स अरीव। ओके, अरीवे, so the verb is arrive. So how will I conjugate that? It's a first category verb. J'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, il arrive. सो यहाँ से जो इल है ना, तो इसकी जगह पे यहाँ पे इल एल आ सकता है। थाउजेंड परसेंट सिंगुलर स, स आ सकता है, होनो सा आ सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सेला है, सेला भी आ सकता है। सेला एक और बार समझा दो वीरे। सेला सीगा सेला इल यार एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। हम्म डेमोन्स्ट्रेटिव, लेट्स गो बैक टू डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਤ ਸੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਦਿਸ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਾ ਸੇਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਲਾ ਮੀਨਸ हेयर, ਰਾਈਟ? ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਸ ਮੀਨਸ this, same as this one, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੈਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਲਾ। फिलहाल ਤੁਸੀਂ सिर्फ इतना याद कर लो, सैला मीन्स दिस in English, सेला सेला।
Arrive. कैसे arrive? मतलब जल्दी फ्यूचर फ्यूचर तो जल्दी करवा देना, बट अपना सब्जेक्ट नहीं है जल्दी जल्दी करा देना। मैं वर्ब लगाऊंगा कोई भी, राइट? हाँ जी। कोई भी वर्ब अरीवे, राइट? तो गाइस जाना अच्छे से लगा देना, ए आई आ ई जरीव रे, इट मींस आई विल गो। ठीक है, सो लेट्स से इट मींस आई विल गो। ठीक है, जे हम अपन को कहना है वनीर आले ना तो कहांगे जेवे आले, जेवे आरीवे, आई विल कम, सॉरी, कम इंग्लिश। सो जेवे आरीवे आप आले कीता है ना। हम्म। नेक्स्ट सेकंड ट्यून ना कितना होगा, ए एस आरीवरा, आई यू विल कम। सो नेक्स्ट आ गया चू वा आरीवे। सो यहाँ पे आएगा आरीवरा, ओके, ही विल कम। इसका होता है इल, यहाँ पे क्या आएगा, El arrive. नो, इलवा avec आले। Oh, el va. हाँ, दिमाग नहीं चल रहा। आरीवे। arrive. हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा ना जो पहले, जो आले है, जो जैसे आले, तो वर्ब प्लस आले कंजुगेटेड कॉन्जुगे प्लस सेकंड वर्ब एज एस, सेकंड वर्ब एज एस। पढ़ा नहीं हमने? कितना पढ़ा हम्म। हमने? बहुत पढ़ा यार, ये तो पूरा पढ़ लिया हमने तो। ये हमने कितनी अच्छे से करी इसकी, कितने हमने वर्ब याद करे हैं ऐसे। तो हम अगर जाए देखें आले के साथ verbs, सुजे आले वर्ब हमने पढ़ा ना ये। तो ये मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही, एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्यूचर टेंस हमने आले किया हुआ है, सुजे आले वर्ब। इसमें हमने je vais arriver, je vais attaquer quelqu'un, je vais attendre। हमने जो सेकंड वर्ब है वैसे कंजुगेट नहीं करा, हम्म। बट सिर्फ आले करा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ यहाँ बात कर रहे हैं हमने, मतलब ये वे आरीवे। सो हम्म। आरीवे आले है, राइट? ये हम इसकी बात कर रहे हैं, टेबल जो है ना, ये बात कर रहा है फ्यूचर की, फ्यूचर, फ्यूचर क्रॉस, उसकी बात कर रहा है टेबल ये, क्रॉस की। तो हम, मैं बता रहा हूँ कि भी जो अगर फर्स्ट पर्सन आएगा जो, राइट, उसका एंडिंग क्या आएगा, आ ई। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट क्रैम करनी है। अगर तू है, उसका एंडिंग क्या आएगा, आ एस, आपको बाय हार्ट याद करनी है ये। और जो थर्ड पर्सन है, उसका एंडिंग क्या आएगा, आ। इन पैरेलल मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, और इन पैरेलल मैं बता रहा हूँ आपको भी, जो वर्ब आले होता है, हाउ टू मेक सेंटेंसेस विद वर्ब आले, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। je vais arriver, tu vas arriver, il va arriver। सिर्फ हमने आले करा कॉन्जुगेट, और सेकंड वर्ब को छेड़े नहीं हमने, वैसे ही रख दिया, arriver। सो आले की कॉन्जुगेशन क्या है, je vais, tu vas, il va, क्या आएगा यहाँ पे आगे, nous, nous allons,
vous allez, ils vont। तो सिर्फ हम आले करेंगे कंजुगेट फ्यूचर की बात करने के लिए। तो ये हमने बना दिए तीनों। उसके बाद आगे चलते हैं। सो nous arriverons, ये फ्यूचर पोर्श है और ये इंग्लिश में है। और ये हमने सेम चीज कही है विद वर्ब आले, विदाउट कंजुगेटिंग द मेन वर्ब। ओके, nous arriverons, we will come। उसके बाद आले, nous allons, arriver, vous arriverez, you will come, vous allez arriver, और il arrive। सही है जी। हाँ जी। सो इसका होता है il arriveront, उसके बाद they will come, और इसका आले का होता है इक्विवेलेंट ils vont arriver। सो ये फ्यूचर पॉर्स हो गया। इसको बोलते हैं फ्यूचर सैम्पल, राइट। और ये आ गया फ्यूचर पॉर्श, और ये होता है अपना फ्यूचर सैम्पल, ये वाला। बट इनकी यूटिलिटी दोनों फ्यूचर में होती है, सो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो नीचे हमारे है जो आले है, फ्यूचर पॉर्श, फ्यूचर सैम्पल, ये है। तो इसमें आपको सिर्फ वर्ब लेना है एज इज। इसके पीछे ये रट लेनी है एंडिंग्स, आ ई, आ एस, आ, ओ, ओ जेड, जेड, ओ एन ते। सो ये आपको रट लेनी है। सो इससे आपका क्या है, हम गया फ्यूचर सैम्पल, और दिस इक्विवेलेंट, दिस इज फ्यूचर प्रॉश, दैट वी हैव डन ऑलरेडी विदाउट कंजुगेटिंग द मेन वर्ब arrive। सब में वैसे ही रहेगा ना। Got it. सही है, गॉट इट। सो ये आज चलो वैसे ही कर लिया थोड़ा बहुत, बट आज हम बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पे आ गया था। तो आप अगर कहोगे सेलो सेला arrive like quelques minutes, that's totally fine। It comes in some time, that's totally fine। ठीक है, अगर नहीं पता लगा ये तो, that here we have just conjugated the main verb with il। So Arrive. arrive, yeah, so that we just conjugated the verb ending in as, just conjugated that arrive, arrive, that like this। So इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली फ्रेंड्स में, ये बड़ी दिक्कत है। यू स्टार्ट टू फॉरगेट जो हमने पहले कर लिया। सो आपको एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे मेरे पास जब मैंने बस लर्निंग फ्रेंड्स, आई कैन शेयर यू दो नोट्स एज वेल इफ यू वांट टू। ये सारी पीडीएफ बनानी पड़ेगी बहुत। मैंने आई जस्ट नीड सम नोटबुक,
So where like let's say I have this much, so I have written here a sticky note, written here verbs, हम्म, right? उसके बाद मैंने 10 पेज छोड़ दिए, तो नेक्स्ट प्रपोजिशंस, फिर 10 पेज छोड़ दिए, नेक्स्ट आगे अपना टेंसेस, फिर छोड़ के पेज, फिर कंजुगेशंस। और वैसे मैंने डिक्शनरी बनाई थी खुद की अपनी, तो आई यूज्ड टू रिवाइज दैट व्हेनेवर आई हैड टाइम। सो आप भी अगर सिस्टमटाइज मतलब हो गए तभी बात बनेगी, क्योंकि चीजें बहुत लेट होती हैं और चीजें बहुत ज्यादा करने वाली। आईटी का द प्रॉब्लम विद कंप्यूटर इज दैट बहुत कुछ है। सो लेट्स से उसमें जाते हो आप, तो आप लेट्स से आप कुछ पढ़ने जा रहे हो, लाइक तो यूजिंग चैट जीपीटी और समथिंग, दैट्स वेरी गुड रिसोर्स, यू विल गेट टू प्रैक्टिस अ लॉट। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको जो चीज नहीं करनी होती, कई बार आप उस पर टाइम खराब कर देते हो अपना, तो कॉपी से बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा यार, कॉपी बनाओ। टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब कॉपी से अपने हाथ से चीज लिखता है ना बंदा, बंदा भूलता नहीं है। उसको भी यूज करो बट ज्यादा नहीं, ठीक है? तो लेट्स प्रैक्टिस वंस मोर। If everything is clear, if every vocabulary word is clear, everything is clear. So let's practice. प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, करते हैं, चलो। You may start. Bonjour, bienvenue au restaurant. Vous avez une réservation ou tout shouté, choisi une table. Bonjour. Non, pas de réservation. Nous aimerions une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Très bien, venez par ici. Je vais vous installer. Vous ici le menu. Prenez votre temps. Merci. Quels sont vos plats du jour? Aujourd'hui, nous avons une soupe de légumes maison et du poisson grill avec des légumes. Cela semble bon. Je vais prendre la poisson grillée, s'il vous plaît. Excellent, job. Euh, Souhaitez-vous une maison avec votre repas? Oui, un verre d'eau plate, s'il vous plaît. Très bien. Et pour la dessert, nous avons mousse, un chocolat et un trait aux pommes. Je vais prendre la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Parfait. Je vais passer votre commande. Celle arrive dans quelques minutes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon appétit. Merci. सो या कुछ के एरर थे। सो पहला था, आपने ये नहीं बोला वूज आवे, लिएजो नहीं बोला है कि यहाँ पे वूज आवे, राइट? So please keep in mind when ending in a consonant and start with a vowel word, you have to pronounce that liaison. Okay, vous avez, and the rest was good. यहाँ पे भी आपने वो liaison नहीं बोला, nous avons। अब यहाँ पे जो एक्सेंट, जब अक्सा एग्यू आ गया ना एंड में, अक्सा एग्यू, पोसों ग्रिए, तो आपको बोलना है ई, तब छोड़ना नहीं। जब अकेला ई है, तो फ्रांस से कम एलिफा, कोई अक्सा नहीं है, तब नहीं बोलना। जब अक्सा आ गया ना नीचे, तो फिर आपको बोलना है, तो प्रोनाउंस करना है वो आपको, जू पोसों ग्रिए। सो प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, जब आपके पास अक्सा आ गया ना, अक्सा, तो आपको वो बोलना है, ठीक है? अब ये एक्सेला choix, and yes, souhaitez-vous
une boisson, une boisson। और यहाँ पे उर्मी यू से एत, इट्स ओनली ए, हम टी नहीं बोलते। सो आई थिंक दिस इज द एरर दैट यू make often. Please note it down somewhere. It's just a. And une tarte aux pommes, une tarte aux pommes. एंड इसके पीछे भी बोनापिति, जस्ट बोनापिति, ये टी नहीं बोलते, पितित नहीं है, बोनापिति, दैट्स इट। Amazing. ओके, चले आगे। Une tarte aux pommes. इन तार्तो पॉम। So I'll just leave it as is so that you know. So you need to work on these, right? And perfect, अनिवा। हमारे पास एक और भी है वैसे रेस्टोरेंट की, you want to do? कर लेते हैं। चलो। Bonsoir, vous avez réservé une table? Bonsoir. Oui, c'est sous le nom de Dupont pour 4 personnes. Parfait. Suivez-moi, je vous installe près de la fenêtre. Voici le menu. Merci beaucoup. Voici means here is the menu, right? Voici, yeah, here is the menu. Yeah. Here it. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des pâtes végétariennes? Végétarien, oui. Bien sûr, nous avons une salade de chèvre chaud et un risotto aux légumes. Je peux vous recommander aussi notre quiche du jour. Excellent. Je prendrai le risotto à l'eau à combinaison un café du un café du vin blanc, s'il vous plaît. Très bien. Et pour les autres? Mon ami les steak frites, bien sûr. Moi, je suis resté entre la soupe et la poulette. La poulet est délicieux, accompagné des purées maison. Parfait. Elle a le pain. Elle a le pain. Nous voudrons un plat de fromage à la partage, à la partage en dessert. Excellent choix. Je vous apporte la pain et l'eau tout de suite. Tout s'est bien passé. Vous avez aimé la plat? Tout s'est bien passé. Vous avez aimé les plats? मेरा नहीं अच्छा नहीं, मैं सर्वर था ना। अच्छा oui c'était très bien l'addition s'il vous plaît. Voici, vous pouvez payer en espèces ou par carte. Par carte, merci Edgar. Jardin La Moine. C'est gentil, merci. Bonne soirée à vous. À vous aussi. So, yeah, थोड़ा औखा सीगा ये. I agree that it was B1 level script, but कोई गल नहीं, it's there. बढ़िया सीगा मतलब हाँ, बहुत ही प्रैक्टिस हो गई. कोई ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, it was like A1 A2, ਠੀਕ ਆ,
ਸਭ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰੀਵੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਰੀਵਰਾ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ, ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਪਲ। ਹਮ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ B1 ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨੋ ਲ। ਸੋ ਪਤਾ ਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਲਪੂਲੇ, ਲਪੂਲੇ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਫੋਨੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਐਲ ਖਾਂਦਰਾ। ਆ ਫਿਊਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਨਸਵਾਰ, vous avez réservé une table, ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ have you reserved a table? Bonsoir, oui, c'est le nom de Dupont 4 personnes, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, 4 ਹਮ, ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, 4 personnes, ਕਿ person। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੱਲਾ ਈ ਹੈ, ਪਰਸਨ। सो एदी साउंड, इसकी साउंड आती है ऐसे ए की, लेकिन इसकी नहीं आती। इसकी तो ऐसे ही आती है पर्सन, पर्सन। हम्म, Ok, so moi je vous installe près de la fenêtre. Okay, follow me. So the moi means follow me. Je vous installe, I'll set you up. Près होता है preposition, près means near the window. Voici les menus. करा हमने। Il said merci beaucoup. Est-ce que vous avez des plats végétariens? इसका भी सेम क्वेश्चन ही है, डू यू हैव वेजिटेरियन डाइट, vegetarian offers? So he said yes, of course. Nous avons une salade de chèvres chaud. So, salade de chèvres, goat, chèvre होती है goat, let me check. उसका उसकी ना उसकी होती है फॉर्माज, chèvre होती है goat, बट गोट मिल्क से ना एक बनती है अपना, क्या कहते हैं इसकी, फ्रोमाज, चीज, राइट? और गुड चीज। गोट चीज। सो उसका सैलड, सैलड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सलाद दे शेफ शो। गोट नहीं है ये, वेजिटेरियन डाइट है ये। रिस्तो ओ, रिसोतो ओ लेग्यूम, रिसोतो होता है मिक्स, रिसोतो ओ लेग्यूम। सो ये ना मिक्स मिक्स होती है, जैसे बीन्स हो गए आपके सारे के सारे। सो ये ऐसे इकट्ठे ही दे देते हैं हमको, 5-6 सब्जियां हो गई ना चिपका, जैसे बीन्स और पीज और रेडिश, कैरेट, रेडिश, सो ब्रोकली, सब मिक्स करके, तो उसको बोलते हैं रिसोत्तो ओ लेग्यूम, ए पार्मेजान। और यहाँ पार्मेजान नहीं है, यहाँ पे वो शेवर का है प्रोडक्ट। पार्मेजान और चीज है, और लेकिन जो है यहाँ पे ये और कोई है। सो ब्रीफ, ब्रेफ, ब्रीफली ये बस मतलब एक वो है अपना, चीज है, राइट? उसके बाद ये कह रहा है किश du jour, किश होता है तार, ओके, जैसे पाई, ठीक है। सो ये 3 चीजें होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद ये बंदा बात कर रहा है excellent, je prendrai le risotto à l'art, et comme boisson une carafe d'eau et un verre de vin blanc, s'il vous plaît। अब हमने करा नहीं, ये carafe क्या होता है? जग, पीछे, पीछे दो, ठीक है जी। इनकी कर करा कराफ, कराफ दो कहते हैं, या पीछे कह सकते हैं आप, पीछे या करा कराफ। करा तो दोनों मतलब आप कह सकते हैं।
सेम आप कह सकते हैं हाँ। इन कैराफ दो या उन पीछे दो। सुपीछे होता है जग, ठीक है, दोनों सेम ही है। आगे चलते हैं। वो पूछ रहे हैं très bien, आपका हो गया, अभी बाकियों के लिए क्या है। ए, ये लिखा ना, एक हम बॉस, ओके très bien, et pour les autres, बाकियों के लिए क्या। mon ami वो, ये वर्ब है vouloir, ठीक है, ये वर्ब है vouloir, इसकी कंजूगेशन होती है je veux, ठीक है, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, ठीक है, ये होगा इसका la stick prête, so stick, steak होता है steak, stick prête bien cuite, bien cuite होती है well cooked, cuite is cooked, एक cru होता है raw, so that's a new word in your vocabulary, new words, cuite means cooked, cru होता है और मैं भी कह सकता well cooked और well done इंग्लिश में, right, that's cuite and cru होता है raw, ठीक है। वो कह रहा है मासा एजित, यहाँ पे वर्ब है एजीते, अंत ला सूप एला पुले, वो कह रहा है कि मेरी जो बहन है वो सोच रही है सूप में और चिकन में क्या लूं। उसने जवाब दिया लपुले ए डिलीसियो, लपुले जो है चिकन अच्छा है, अकम्पनिए दे प्यूरे मेजो, उसके साथ आएगा एक प्यूरे, घर घर की बनी सब, घर की बनी प्यूरी साथ आएगा, पुले चिकन, और फिर बोला परफेक्ट, सही है। एल खांद्रा, अब एल खांद्रा ये सारा, लपुले अकम्पनिए दे प्यूरे मेजो, ये सारा ल है आपका, सारे का सारा को बोलते हैं फोनो, ठीक है, ये सारे के सारे ल, एल खांद्रा, ठीक है। और ये खांद्रा फ्यूचर आ गया अभी, राइट, एल खां, अब इसको मैं लिखूं प्रेजेंट में तो क्या लिखूंगा, एल खां, इसका वर्ब है प्राद्र, की कंजुगेशन है एल खां, ठीक है, यहाँ पे Um, हमने किया ना प्राद्र, hmm, troisième catégorie, je prends, tu tu prends, prends, yes, il prend, yeah, nous prenons, nous prenons, il yeah, prend yeah, yeah, des, सिंगल आएगा डबल एन आएगा इसमें, खानों, double N आएगा, right? ओके, मैंने चेक, मुझे याद नहीं, वो खाने, And il prend, prend, इसमें डबल आएगा, double check करना। खांद्र, एक ही आएगा बेटा। एक ही आएगा, हाँ, अच्छा कोई नहीं, या एक ही आएगा, करने से nous prenons, vous prenez, नहीं, il prennent, इसमें डबल आएगा, हाँ, prennent में, इसमें prennent आएगा डबल, il prennent डबल आएगा यहाँ पे, अगर सिंगल करते हैं तो वो बन जाएगा कुछ और ही बनेगा नहीं कुछ। किसमें, इल में il prennent, डबल एन आएगा। हाँ इसमें डबल आएगा। सो हमने ये वाला यूज किया एल, ये एलू एल, एल खां, सो हमने ये करा यूज किया, बट इन फ्यूचर टेंस, राइट, बट खां खा, सो फ्यूचर इसका ये, इसका ए हटा के
ई हटा के ए लगा दिया, इसमें फ्यूचर बन गया। सो खांदरा, सेम बेस सेम, और ई हटा के ए लगा दिया, फ्यूचर बन गया इसका। तो ए सो लगा दो फ्यूचर बन जाता है। Nice. हाँ, बताया ना पीछे हाँ आगे रीड। ये एंडिंग्स आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेंगी। इल के साथ क्या आएगा, एल के साथ क्या आ आएगा, राइट। हम्म। सो नू के साथ ओ आएगा, बाकी वर्ब ऐसे ही रखना है। Yeah. अनलेस वर्ब इज एंडिंग इन अ, हटा के फिर ये एंडिंग लगा देनी है। जैसे हमने जो वर्ब क्या, खांद्र, ओके, इसकी फीचर क्या होगी, ये हाँ, खांद्र का ए हट जाएगा, ठीक है, हम्म। और ए आई लग जाएगा पीछे, ठीक है। अब क्यू का क्या होगा, एएस प्रांद्रे। खांद्रा, खांद्रा, यस। इल का क्या होगा, प्रांदा। खांद्रा, नू, सेम ही होगा। प्रांद्रे खांद्रो, खांद्रे, खांद्र, खान। खतरांद्रो, ठीक है। ये बस आपको एक बार एंडिंग याद होगा अच्छे से, ए आई ए एस आ, फिर कोई दिक्कत नहीं, देन यू कैन से एनीथिंग इन फ्यूचर। It's a lot easier than present conjugation. So ठीक है, बट हम प्रेजेंट में रहते हैं जब खां एंड ए नु वुद्रियों आ प्लातो दे फॉर्माज आ पाता जे अंदाजार। वो कह रहा है कि भी हम सभी एक प्लेट चीज की मतलब लेंगे, तो अपारता जी, इसके इसके ना दो मतलब है। देखो, हमारे कल्चर में क्या होता है कि भी हम जनरली पे करते हैं, राइट। तो जो बंदा इनवाइट करता है, तो बंदा वो पे करता है। तो ये बड़े स्मार्ट है ये बंदे, मतलब इनका क्लियर होता है पहले से ही, बिल स्प्लिट होगा। तो जैसे 5 बंदे जा रहे हैं ना, तो जब ये कहते हैं ना आप आता जे, तो इससे मुझे क्लियर होगा कि भी यार ये बंदा ना, मतलब ये वो वेटर भी समझ गया कि जो हर एक बंदा ऑर्डर कर रहा है तो स्पेसिफिक में लिख रहा है, और जो ये प्लेट है एक, वो सबके बिल में डालनी है। हमारे में ऐसा नहीं होता, कल्चरल डिफरेंस है ये। सो हमारे में हम मतलब जो बंदा इनवाइट करता है वो सबको पे करता है, राइट। तो इनका कल्चर ऐसा, मतलब ये स्ट्रेट चलते हैं, हर एक बंदा अपनी अपनी खाए, अपनी पे करे, दैट्स हम्म। इट। और इकट्ठा कह रहे हैं तो पहले से ही बोल देते हैं कि आप आता जी, तो सब में डल जाएगा ये एक प्लेट। एनीवे, so that was a cultural shock that I experienced. People used to invite me. हम like when we invite somebody, we take care of the bill, right? But इनका ऐसा नहीं होता, ये जस्ट गैदरिंग के लिए बुलाते हैं और उसके बाद you pay your bill and they pay their bill. So that's how it works. And it was a cultural shock for me in the beginning, but after that I got used to it. भी ऐसा ही है, ये इनवाइट कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है भी ये खाने पे बुला रहे हैं, मतलब कंपनी के लिए बुला रहे हम्म। हैं। हाँ, थोड़ा फर्क है। सो excellent, j'avoue apporte les pains et l'eau tout de suite। अब पता है क्या होता है, ले पां ए लो tout de suite, ये पां फ्री होती है, ये पां होती ब्रेड। तो ये ब्रेड और बटर फ्री होता है। तो इनका ना मतलब छोटी सी होती है ब्रेड की टुकड़े, छोटे छोटे। जब बंदा जाता है ना रेस्टोरेंट में, तो उसको पानी और ब्रेड फ्री देते हैं। पता नहीं हमारे कल्चर है कि नहीं है, फ्रेंच में कल्चर है। तो यू एंटर, इसको बोलते हैं लपैरो, लपैरो। उसमें थोड़ा पानी, हल्के सा बटर, स्मॉल टिक्की, छोटी सी टिक्की होती बटर की, और ब्रेड, जितने मर्जी मांगो आप। इटालियंस में होता है। हाँ, इटालियंस में होता है, इटालियन इसलिए फ्रेंच में इनका। इटालियंस, या एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा फ्री होता है, उसके बाद जो आप मेन कोर्स ऑर्डर करोगे उसके उसके ज्यादा पैसे लगते हैं। जो तुझ से भी पासे, वो जावे एमे ले प्ला। तो वो कह रहा है सब अच्छा गया, जब प्लूता का मतलब बाद में, बंदा पूछ रहा है बाद में, ठीक है। सो बाद में वेटर पूछ रहा है अभी तुझ से भी पासे, तू से भी पासे, वो जावे एमे ले प्ला, ओके। सो दैट्स अ पास्ट टेंस।
vous avez aimé। ठीक है, हमने करा नहीं अभी, बट एनीवे ये भी पास्ट टेंस है, तो उसके बिना पास है। अगर इसको मैं लिखूं प्रेजेंट में तो क्या लिखूंगा? तो तू से पास दूं, तो सब अच्छा जा रहा है, सब अच्छा। So, vous avez aimé les plats? Did you love the food? Oui, c'était très bon. अब उसका बिल मांग रहा है, वसी vous payez en espèces ou par carte? ये फ्रांस में करते हैं यूज एन एस्पेस। आई थिंक ये मतलब कैश होता है, लेट मी चेक। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड। एन कैश, वही। सो यहाँ पे बोलते हैं कौन था, यहाँ पे क्यूबिक में बोलते हैं कौन था। एन एस्पेस बोलते हैं फ्रांस में, एन एस्पेस ऊपर लगा। ठीक है। दैट वाज ऑल। So I hope that you did learn something new from here Yeah. and moving forward. So I'll send you these two once we're done Please. and आगे करते हैं। So आज हमारे पास है लेखों खनो रिलेटिव। रिलेटिव ये क्या होते हैं? Hmm. रिश्तेदार। रिश्तेदार। So, इसका होता है मतलब who in English, right? That joins the main clause to a dependent clause, right? The pronoun, the pronoun introduces a dependent clause that describes something or someone or something mentioned in the main clause. Hmm. The person or thing the pronoun refers to is called antecedent. So it's like who in English, right? तो उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, होता गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ा इज लाइक हु और विच और दैट इन इंग्लिश, राइट? सो की एंड क, ये क्या होते हैं? सो की इज हु और विच और दैट is the subject of the relative clause, which means it will be followed by a verb in the dependent clause. He may refer to people, things, or places, follows the format antecedent, subject, verb. C'est la femme qui a gagné. ओके, यहाँ पे से ला femme qui a gagné। देखो यार, आपने ना वो अभी वो नहीं करा यार। तो यार रूमी ऐसे ऐसे करते हैं पहले यार। आई थिंक आई फील दैट पहले हम वो कर लेते हैं यार, टेंसेस। हाँ जी, थोड़ा एडवांस हो जाएगा क्योंकि ये हमने ना करा नहीं। टेंसेस कर लेंगे पहले, मैं यहाँ पे इस ग्रुप में टेंसेस करे नहीं। कर लेते हैं। टेंसेस टेंसेस का ना मैं बताता हूँ आपको। टेंसेस का लेक्चर पढ़ा है ये नेट पे, बट हमने यहाँ इस पे ग्रुप में नहीं करा। तो लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ, कितना भी हुआ। सो ये टेंसेस पढ़ा है, ठीक है। सो just go from to my notes and then explain it to you that tenses ये इंपॉर्टेंट है यार बहुत। इससे पहले वो टेंसेस कर लेते हैं। टेंसेस 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 प्लीज विद फरवरी, लास्ट मंथ की बात है।
ये रहा, ये हमने ना यहाँ पे करानी होगा। तो इसके पहले हमें वीडियो देखनी पड़ेगी, पर चलो वीडियो यार प्लीज तुम देखना खुद से, तो मैं समझा देता हूँ तो इसमें है क्या। वीडियो और लेक्चर तुम खुद से देखना, ठीक है। तो देखो मोटा मोटा ना हमारे पास तीन तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। इन्होंने ना इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करी है, ठीक है। और पास्ट और फ्यूचर की बात, मतलब उन्होंने वर्ब लिया मांझी, सिर्फ सारे टेंस समझाए उन्होंने प्रेजेंट में और पास्ट में। तो पहले है जी हमारा, हमने जो करा हुआ है वो मांझी लिया उन्होंने, और जमाज त्यूमाज इल्माज एलमाज नुमाजों वुमाजे इल्माज, राइट। और उसके बाद ये होगा प्रेजेंट टेंस। और फिर हम प्रेजेंट में एक होता है इम्पेरेटिव। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो प्रेजेंट टेंस हो गया कंजुगेशन, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है हमारा, हम कहते हैं कि एथ आंखें दे करके यूज, दैट्स इक्वल टू आई एन जी। सो आई एम ईटिंग, दैट्स ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। सो अगर मैं इसको ऐसे एक तो ये हो गया। एक होता है इम्पेरेटिव, ये होता है ऑर्डर, लाइक लेट्स ईट, mangeons la soupe, allons-y, parlons à ce sujet। हमने ये तीनों करे हुए हैं टेंसेस। ये सब बात करते हैं हमारा प्रेजेंट की। उसके बाद आता है पास्ट, पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस में जो चीज जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं ला पासे, उसमें वो होता है। उसमें हमने कराया कि भी एक सिंपल करते हैं अबुआर के साथ, वर्ब्स को करते हैं कंजुगेट, राइट। लेकिन पास्ट टेंस में बहुत होते हैं। एक तो है रिसेंट पास्ट, जैसे हमने करा ना वनीर, वनीर पासे कंपोजे इम्परफेक्ट प्लस के परफेक्ट। तो यार ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो हो गया वनीर वाला, ठीक है। फिर हो गया पासे कंपोजे, फिर हो गया प्लस के परफेक्ट इम्परफेक्ट, फिर हो गया प्लस के परफेक्ट, ठीक है जी। ये होगी बात पास्ट टेंस में। अब वनीर तो हमने बहुत करा है, तो हमको सिर्फ वनीर की कंजूशन याद करनी है। Je viens de manger, je viens d'arriver, je viens de parler। अगर आपको याद हो तो इट्स वनीर दे। सो इसकी कंजूगेशन है je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent। तो आपको ये सिर्फ बाय हार्ट याद करनी है। उसके बाद preposition द, वनीर लेके आएगा। सो नेक्स्ट वर्ड will come as is। Je viens de manger, it means I just ate। Je viens de parler, it means I just spoke। Je viens d'écouter means I just heard। So that's recent past। एक तो ये तरीका होगा कहने का वनीर, ये हमने करा हुआ है, ठीक है। एक तरीका है पासे कंपोजे। वो कैसे बनता है पासे कंपोजे? सो पासे कंपोजे जो होता है ना, पासे कंपोजे, लेट मी जस्ट ऐड अ पेज।
सो 90 जस्ट 16 वर्ब्स है, 16 वर्ब्स जिसका पास्ट से कंपोज हम एतर से करते हैं. अदर देन दैट 90 to more than 90% verbs we use avoir to say something in the past. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको ये याद करने पड़ेंगे बाय हार्ट. इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था ना आपको ये पास्ट पार्टिसिपल लास्ट लेक्चर में. पार्ले, पीनी, याद आपको? या वांद्यू. सो अभी ये अब एक यूज करते हैं इनको. तो अगर मैं कहूँ पास्ट में ये मौजे, ठीक है, इसका मतलब है कि आई एट. ठीक है, इसको मैंने सिर्फ वर्ब लिया, वर्ब है मौजे. ठीक है, और इसका है पास्ट पार्टिसिपल. मैं पीपी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल. चलो कोई नहीं, इसका है मौजे. सो आपका यहाँ पे वर्ब है मौजे, इसका पास्ट पार्टिसिपल है मौजे ऐसे करके, और मैंने अवुआर लगा दिया इसके साथ. ठीक है, ये मौजे, इसका पास्ट बन गया पास्ट टेंस. जी मोहन मैं खा लिया. मैंने खा लिया. तो आपको ये तो पता ही है ना अवुआर का, राइट? क्या आएगा ये, क्या आएगा आगे? इसका अवार्ड. हाँ हाँ, चुआ, Ilva. il a, nous avons, Nous avons, vous avez, vous avez, très bien, ils, ils ils ont. ont. Donc, sans duplication. सो मतलब सॉन्ग, क्योंकि ये लिएजों है इसलिए सॉन्ग बोलते हैं लेकिन लिखते ओ, राइट? On. ils ont, सो vous avez, nous avons. ठीक है, तो इसका बेस यही है. एक तो ऑक्सिलियर अवुआर, दूसरा है इसका बेस ऑक्सिलियर एत्र. तो इसका आ गया je suis, tu, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. ठीक है, तो हम ये दो ऑक्सिलियर यूज करते हैं. ठीक है, दोनों पास्ट टेंस को करने के लिए. तो सिर्फ 16 वर्ब्स के लिए होता है एत्र, पास्ट से कंपोजे. ठीक है, और जो है 16 वर्ब्स हमारे, वहां पे एत्र होता है यूज. और टेल यू विच वंस, बाकी सब के लिए होता है अबुआ, राइट? सो वो 16 वर्ब्स कौन से हैं वो मैं बताता हूँ आपको अभी. ये लिस्ट पड़ी है आपको आपके सामने, ये वाली. सिर्फ ये 16 वर्ब्स हैं ऐसे जो हम यूज करते हैं विद एत्र. बाकी सभी हम करते हैं या कंजुगेट पास्ट टेंस में अबुआर के साथ. तो मैंने ये कैसे याद करें लिस्ट, ऑपोजिट ढूंढ ली, इनके ऑपोजिट ढूंढ लिए मैंने. देखो वनीर होता है टू कम,
आले होता है मतलब टू गो, और रिटर्न होता है कम बैक। सो ये तीनों मिलते हैं आपस में, राइट? इनका ऑपोजिट्स ऑपोजिट्स है आपस में। तो ये होंगे यूज हमारे एतर के साथ। तो मैंने ऐसे ही याद करे हैं 16 के 16। तो मुरीर होता है टू डाई, और नेतर होता है टू 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 कम टू दिस अर्थ। डेथ, श्रीने, सो मैं यहाँ पे आया, पैदा होना, राइट? होता है नेथ। मुरीर होता है मरना, और नेथ होता है पैदा होना। इसका ऑपोजिट है, राइट? सो मैंने ये ऐसे इनको याद किया है, मोरीर, नेथ। पास से होता है निकलना, और रेस्ते होता है रुकना। पास से रेस्ते, ऐसे ही। Entre sortir, entre means come in, sortir means go out. Arriver, partir, come in, partir, go outside. Monte, monte होता है चढ़ना ऊपर, और descendre नीचे उतरना। ऑपोजिट हो गया। इसके अलावा दो वर्ब्स रह गए, tomber और devenir। इसकी यूटिलिटी कैसे? एग्जांपल, suis venu hier। देखो, ये वेन्यू है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, वर्ब वेनिर का। वेनिर का वेन्यू बन गया, और एतर लग गया यहाँ पे, suis venu hier, मैं कल आया था। और एग्जांपल करते हैं, je suis monté les escaliers। मैं सीढ़ियां चढ़ गया, ठीक है। मैं एत्र कर रहा हूँ यूज, थोड़ा और क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं पास में जो है वर्ब हमारे अबुआर वाले, ये पास में लिखे हुए। पास से कंपोजे avec avoir। ये manger, j'ai mangé, I ate। j'ai parlé, I spoke। ये dansé, I danced। j'ai chanté। बताओ यार, तुम हेल्प करो मेरी थोड़ी सी। They chanted, they chant. हेल्प करो, help me to make some sentences with avoir in past composed। So give me some words, please। J'ai écouté, j'ai travaillé। एक सेकंड। कोई गल नहीं, टेक योर टाइम। J'ai demandé, J'ai demandé, très bien। j'ai acheté, J'ai acheté, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai amené, j'ai amené, j'ai boire, j'ai bu। Let me check, आपने क्या होता है पहले भूल गया, इसके कैसे लिखते हैं आपने? aimé, like दोस्त, like I love. brought है, आपने और हमने। aimé, sorry, एमे, aimé, ओके, aimé, एमे भी होता है। ये एमे, एक होता है आमने, होता है आई ब्रॉट। इसका होता है आई ब्रॉट, ठीक है। देखो, कोई भी वर्ब ना आपको सिर्फ करने हैं या इसका पास्ट पार्टिसिपल, पास से। और अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे कोई भी वर्ब का कंजुगेशन, तो जनरली यहाँ पे होता है, लिखा होता है। तो जैसे हम कोई वर्ब लिखते हैं पार्ले, तो वेरी सिंपल ये लिखा है पार्ले, ऐसे लिखा पार्ले। तो आपको ये क्रैम करने हैं बाय हार्ट। शांति,
ये लिखा शांति, पार्टिसिपल पासिव। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, जैसे बताइए ना आपको वेबसाइट बताइए मैंने, तो इसके वेबसाइट के टेबल के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ पास्ट पार्टिसिपल, आपको ये याद करना है। फिनी, पार्ले। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट क्रैम करने हैं सारे, बहुत इजी है, पर थोड़ा टाइम, फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट पहली बार के लिए। सो ये था। ठीक है जी, हाँ जी। और बताओ कुछ। वर्ब्स। हाँ, जी पासे। ये पासे, देखो पासे यहाँ भी है, हम्म। बट पासे दोनों तरीके से यूज होता है। अगर मैं किसी के आगे से गया, तो फॉर इंस्टांस हम पासे छोड़ देते हैं, तो उसको अबुआर के साथ करते हैं, तो उसका चक्कर है थोड़ा सा, हम पढ़ेंगे बाद में। फॉर इंस्टांस पासे देखो यहाँ पे है ना इस लिस्ट में, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम पासे छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। सो लेट्स लीव पासे, विल डिस्कस लेटर। रिगादे। डिस्कस लेटर। पासे स्पेशल है, पासे, पासे दोनों में आता है, पर कैसे आता है, कहाँ आता है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये रिगार्डे, très bien, Fini la Paquita. J'ai montré. j'ai montré, parfait। J'ai sorti. देखो सॉर्ती यहाँ भी है। यहाँ पे आ गया वो। हाँ, तो फिर यहाँ पे आएगा वो, यशवी सॉर्ती, यशवी सॉर्ती। मैं बाहर चला गया। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद करने हैं बाय हार्ट। शिजाले। इनका क्या था, ये होंगे नहीं वैसे, राइट? कैसे? लाइक इन पे वो एंड में आवा एथ। ये मतलब, अगर इनमें से कोई वर्ड वर्ड आ गया ना, हम्म, 16 में से, तो आपको एतर के साथ करना है इसका पास्ट टेंस। हाँ जी, एथ के साथ 500। तो जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे आपने बताया सौरती, राइट, तो इसका सौरती होता है पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब मैंने लगा दिया एत्र इसके पहले, यशवी सौरती। Je suis sorti. ठीक है, Je और suis arrivé. Je suis parti. एग्जैक्टली, je suis arrivé, je suis parti, je suis tombé, je suis descendu, मैं नीचे आ गया, मैं गिर गया। सो सारे के सारे इसका एतर के साथ होगा। ये तो आपको होमवर्क याद कर सबको मन में बिठाने हैं। पहली बात तो यार आपको ये बाय हार्ट आना चाहिए, बाय हार्ट ये चीजें दो। अब वो आर हो रहता है, देखो इसमें कोई, जब भी बंदा पूछे तुम सो रहे हो, चाहे अब वो आर की कंजूएशन तुमने पता होना चाहिए, नू के साथ क्या आएगा, नू जागो, राइट अवे। इसको तो रट लो यार आप, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। एतर, अबू आर और फैर, मैं आपको हर बार कहता हूँ, ये तो आपको आने ही चाहिए। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसको पक्का करो पहले, बाय हार्ट। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, हम चलते हैं बैक टू लेक्चर। सो हम चलते हैं बैक, हम क्या कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कहाँ गया वो।
ओके, लेता हूँ देवर, ये था। सो हम इस टेबल की बात करते हैं, ठीक है। हमने कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, कंजुगेशन होती है, हम कर वर्ब करके कंजुगेट, तो हम कह सकते हैं कि भी हाँ भी बता दिया, डन होगा ये। एट खान खेंदे में पता है, इट्स जस्ट लाइक आई एडिंग आई एन जी। श्वेत खेंदे माजे, श्वेत खेंदे शांते, हमने बहुत करे हैं ये, ठीक है। और इम्पेरेटिव होता है गिविंग ऑर्डर्स, ये भी हमने करा है, जैसे मांजो ना सूप, आलोंजी, just show you my blog where we have done that. हाँ। ठीक है जी, हाँ जी। हमने ये कर लिया प्रेजेंट, जिसमें हम कंजुगेट करेंगे मेन वर्ब को, जैसे मार्जिन पॉम। अब ये इंपेरेटिव आ गया, मार्जता पॉम, इसे ऑर्डर करना और रिक्वेस्ट दोनों में चलता है। सो एथ आंखेंडे इज लाइक आई एन जी, हमने करा ये भी। शुएंखेंडे मांजे, शुएंखेंडे दांसे, देखो बहुत कुछ है ये, तो मुझे बहुत टाइम लगा समझने में। तो जैसे मैं जल्दी जल्दी करवा करवा दूं तो आपको टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। आराम से जब आप बैठोगे कहीं नोटबुक लेके, तो आपको समझना है एथ आंखेंडे, सब्जेक्ट कौन सा है, सो सब्जेक्ट के साथ एथर की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आपने वो लिखनी है। फिर आंखेंडे वैसे ही रहेगा। तो ये होगी बात सारी प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद पास्ट टेंस मैंने करवा दिया आपको, पास्ट कंपोजे हमने बनाए, 16 वर्ब हैं, लिस्ट बताइए आपको मैंने, ठीक है। बाकी जो है ऑलमोस्ट 90 to 95% वर्ब्स होते हैं सिर्फ अवुआर के साथ। ये मांजे une pomme, आई एट एन एप्पल। सो मांजे मैंने करा उसका पास्ट पार्टिसिपल, वो मांजेगा, और उसके आगे लगा दिया मैंने अवुआर, ये मांजे une pomme, ठीक है। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट की। अब ये होता क्या है, ये कहाँ पे आता है टेबल में, समझते हैं पहले इसको। सो अब ये है बात पास्ट, यहां से शुरू होता है आपका पास्ट टेंस, यहां से, ठीक है, यहां से। तो पहला होगा ये वाला पासे रेसा, जो होता है वनीर से, राइट। अब उसके पीछे आता है पासे कंपोजे, जिसमें दो लगते हैं ऑक्सिलियर, अबुआर और एत्र, दोनों कर लिए हमने। एक होता है इम्परफे, ठीक है, उसके भी एंडिंग्स आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा पास में है। और उसके भी और पास में होता है प्लूस के परफे, ठीक है। तो पहले आप इतना कर लो यार, देखो आई थिंक इट्स अ लॉट, ये बहुत है। है ना। मैं जल्दी जल्दी सारा करवा दूंगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अगर नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे, तो आई वुड वांट, क्योंकि ये वीकेंड है तो इसलिए थोड़ा मुझे होमवर्क भी आपको देना था। आई वुड वांट दैट यू प्लीज गो थ्रू द this blog, at least try to understand it, what we have done, and where are we at present, and फिर करते हैं कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको ये भी भेज रहा हूँ, जो नई चीजें आपको ऐड करनी है हमने। So let me stop the recording first.